15 अगस्त 1947 की सुबह जब भारत आजादी के नए दौर में प्रवेश कर रहा था, तब तक 560 से ज्यादा रजवाड़ों का भारत में विलय किया जा चुका था। एकीकरण के 1 साल तक चले इस अभियान में भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र की शक्ल मिली। भौगोलिक और भावनात्मक तौर पर भारत को एक करने वाले हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम बारदोली की महिलाओं ने दिया था। 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह ने सरदार पटेल को एक राष्ट्र नेता के तौर पर स्थापित किया। सरदार देश के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए भारत के किसानों को एकजुट कर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इससे पहले 1918 में गुजरात में हुए खेड़ा सत्याग्रह ने सरदार पटेल को एक किसान नेता के रूप में पहचान दी थी। सरदार पटेल का व्यक्तित्व बर्फ से ढके एक ज्वालामुखी के समान था। भारत को एकजुट करने में उनके इसी व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का योगदान था। सरदार पटेल एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। अपनी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले पंडित नेहरू को भेजी गई एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि हमें आने वाले समय में चीन से सामना करना होगा, जो कि सच साबित हुआ। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सरदार पटेल का नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। I, Vallabhbhai Patel, Vallabhbhai Patel, do solemnly affirm that in the office of Minister, I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and that I will do right to all manner of people, after the laws and usages of India, without fear or favor, affection or ill will. I, Vallabhbhai Patel, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister, except as may be required for the discharge of my duties as Minister. I congratulate you very much. I was waiting for happier circumstances and more suitable conditions in the country for me to come to the microphone to place before you a few thoughts, but fate has ruled otherwise, and it is my painful duty to speak to you tonight in conditions which are tragic beyond words. It is thus with a heavy heart and in obedience to the call of duty that I have decided to say a few words. Almost a month ago, we were all celebrating with unparalleled enthusiasm and joyfulness one of the most momentous events in any country's history, namely the celebration of our hard-won freedom from foreign domination. Our joy on the occasion of these celebrations was somewhat subdued by the tragic events that were taking place elsewhere in some parts of the country. Horror and atrocities were being perpetrated, but they were so circumscribed
that we had hoped that we would be able to isolate them in that restricted area. But the area has since then widened, and the frenzy and intensity of communal violence have overtaken men, women, and children over a wide stretch of territory. Untold human sufferings and unspeakable brutalities have been inflicted. In short, there has been a virtual slaughter of innocents, of which we shall have to revert to the Middle Ages to find a historical parallel. Like an avalanche, this savagery has swept with it human beings, cattle, dwelling houses, spreading wanton desolation and destruction in its wake. Let not anyone remain under the impression that we are not fully alive to the dimensions of sufferings and misery that have been inflicted on our unfortunate brethren and sisters on the other side. What stares us starkly in the face is not only these sufferings and miseries, but also the fate of countless men, women, and children stranded there, which is still in the balance, and of which we, no less than the neighboring government, are likely to be the arbiters. They look to us to rise to the occasion. This stupendous task is going to consume every ounce of our energy and every bit of our resources. To place any obstacle in the way of its fulfillment or to divert our attention from it involves playing with the lives of millions of men, women, and children who are lying in hourly peril and whose patience and resistance are wearing away every moment. I do fully appreciate the feelings of those who have taken refuge with us, the feelings of anger that rule their mind, the amount of bitterness that has affected their outlook, in the depth of sorrow that afflicts their heart. I can assure them that they alone do not harbor these feelings, but they have affected a very large number of their fellow countrymen. But at the same time, they should remember that neither retaliation nor revenge can assist us in the supreme task that we have set ourselves, and that if thousands of lives are to be saved, and if we have to succeed in bringing to safety and shelter thousands of those who are stranded in unsafe pockets on the other side, it is essential that we are allowed to function at 10 times the normal efficiency. Our ranks are depleted, our resources are yet unorganized, and our position is yet not fully stabilized. To ensure requisite efficiency, therefore, our governmental machinery, which has been subjected to severe shock of sudden partition on purely communal lines, has to be readjusted and reorganized and has to be keyed up to the required pitch. In addition, we have to organize voluntary services, without which no undertaking of such dimensions can have any chance of success. It is in these circumstances that I make this appeal to you all to contribute your utmost to the maintenance of law and order and essential services in this capital city. Delhi is not only the nerve center of administration, it has also become the focus of non-official organizations. To disturb the life of Delhi is therefore to deal a deadly blow to the very life of the community throughout India. It is also cutting the lifeline through which alone can the free flow of refugees be sustained. Let each one of you, therefore, calmly reflect on the part which you are playing in your respective spheres and outside, and whether the consequences of such actions as you might be taking are promoting the object we all have at heart, or whether they are hindering the task of saving the lives or relieving the sufferings of lakhs of our people. We have been sitting from day to day, engaged in setting various points which clog our machine or retard our progress. Our normal departmental responsibilities have ceased to interest us. All of you can therefore serve us best by ensuring that the peace of the city is maintained at all costs, that its normal life flows with the same evenness as before, and that its peaceful citizens are thereby enabled to organize themselves for the life-saving task which is as much theirs as that of their government. I shall not disguise the fact that many of you are laboring under a sense of grievance
and discontentment at our shortcomings. But you have got to remember that the flood overtook us at a time when the government of the East Punjab was yet to be formed, and the central government was suddenly faced with a serious shortage of officers and men to manage its normal administrative machinery. The transition period everywhere is a period of instability, and the transfer of power, even in the best of circumstances, is always attended with many dislocations and adjustments. If to these circumstances you add the coincidence of a great upheaval and the rising of a problem of huge dimensions, you can realize the tremendous shock that the administrative machinery has received. Further, our normal communications, which had been worn out by the wartime strain, have been attacked and dislocated. This has interfered with our evacuation program and accentuated our food problem as well. Ruthlessness or rigor of repressive machinery of government can and has enabled us to gain a sudden improvement, but it is neither creditable to you nor to us to have recourse to such a distasteful course. Besides, this method would not bring about lasting results, and ultimately we would, I am sure, be faced with problems much more complicated and disturbing than those which immediately demand solution. This is hardly the time to apportion blame. Let us not therefore concentrate on mutual fault finding, but on mutual assistance, so that we can each one of us lend our hand to the speedy solution of the vast problems which an evacuation virtually amounting to mass exchange of population entails. The bitterness of sufferings, the sorrow of losses, the despair of quick results, and the distress at the seemingly slow pace of progress would be submerged by the overriding need of concerted action. We can take account of these later. Let us get on with the job in the hope that we will do it well, and the faith that despite the shock which the whole organization has received from the recent disturbances, we shall acquit ourselves creditably in one of the great rescue projects of history. Jai Hind. देश की हजारों दुखित औरतों के लिए जो जोरदार अपीलें की जा रही है, उनके पक्ष में मैं भी अपनी ओर से कुछ कहना चाहता हूं। पिछले दिनों पूर्वी और पश्चिमी पंजाब और सीमा प्रांत में जो अराजकता फैली थी और जिसने कश्मीर की सुंदर वाड़ी के कुछ भाग और जम्मू प्रांत को भी घेर लिया, उसमें निर्दोष औरतों और बच्चों का अपने संबंधियों से जबरदस्ती से छीनकर दूर किया जाने और उन पर तरह तरह के जुल्म और अत्याचार करने से जितनी हमारी इज्जत गिरी, उतनी किसी और घटना से नहीं कम हुई। इस प्रकार की दुर्घटनाओं तो जानवरों के रहन सहन के नियमों के अनुसार भी नहीं है। ऐसे कुकर्म सभी समाज और सभ्यता की परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता और हमारा कर्तव्य है कि सभ्यता के विरुद्ध ऐसे आचरण का हम दृढ़ता पूर्वक दमन करें। जब मैं इन माताओं और बहनों की दुर्दशा और उनके कष्टों का ख्याल करता हूं, तो मेरा हृदय शोक और पीड़ा से भर जाता है। अच्छे घराने की पढ़ी लिखी स्त्रियां, जिनका जीवन खुशहाली के गोद में पला था,
जो शांति से अपने परिवारों को साथ अपना सुरक्षित जीवन व्यतीत करती थी। बहुत सी स्त्रियां गरीब घरों की आभूषण थी, जो आज उजाड़ और बर्बाद पड़े हैं। उन्हें सबको दुराचारियों के हाथों से अपने घरों से जबरदस्ती दूर कर ऐसी हालत में डाल दिया है जो मानवता के नाम पर कलंक है। यदि हमें मानवता को फिर से उसके पुराने स्थान पर प्रतिष्ठित करना है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन अभागी औरतों को उनकी वर्तमान पतित दशा से निकालें और उनको उनकी पुरानी परिस्थिति में वापस पहुंचा दें। यदि हम ऐसा न कर पाए तो मानव इतिहास में हमारा कोई भी स्थान न होगा और आने वाली पीढ़ियां हमें जानवरों से भी गया बीता समझेगी। इस सत्कार्य में जो लोग हर प्रकार की मुसीबतों का झेल कर और विघ्न बाधाओं के चिंता न करते हुए लगे हुए हैं, उन्होंने देश और मनुष्य जाति की प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है। इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यह ठीक है कि यह प्रशंसा इतनी महान है कि जो कुछ अब तक हो पाया है वो तुच्छ मालूम पड़ता है, किंतु इस थोड़े से नतीजे को हासिल करने में हमें कितनी मेहनत और जी तोड़कर काम करना पड़ा है। अगर हम इसका विचार करें तो हमें अनुमान हो सकता है कि यदि मानवता के खंडेरों से हमें ये आभूषण बचाने हैं तो अभी कितना काम और करना होगा। यह स्पष्ट है कि ऐसे महान कार्यों का सफलता से पूरा करने के लिए हमें जनता और सरकार का सहयोग जरूरी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता और सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि इस शुभ काम में पूरी सहायता दे। ऐसा न करना न केवल उन आश्वासनों के खिलाफ होगा जो दोनों सरकार ने एक दूसरे को दिए हैं, बल्कि समाज और सभ्यता के सब सिद्धांतों के प्रतिकूल भी होगा। हमें उन अपराधियों का भी चित जिनके कब्जे में यह औरतें इस प्रकार है मानो के बाजार में विकृत वस्तु थी या जीती हुई लूट थी, जागृत करना है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वह अपनी गलतियां महसूस करे और इस पर विचार करे कि उनके इस गलत रास्ते पर चलने में कितनी हानि है। इस महाअपराध का दंड देते समय इस बात का कोई विचार नहीं किया जा सकता है कि अपराधियों ने यह काम धर्म के नाम पर या प्रतिशोध या लूट खसोट की भावना से प्रेरित होकर किया था। यदि फिर से उन्हें मानव अधिकार प्राप्त करने हैं तो उन्हें चाहिए कि वे पश्चाताप व प्रायश्चित करें और जो बुराई उन्होंने की है उसे ठीक करने में सहायता दे। यदि वे फिर से मानव समाज में आना चाहते हैं तो उनके लिए कुपथ को छोड़ने का यही अवसर व रास्ता है। उन्हें चाहिए कि वे अपनी आत्मा की पुकार सुने, अपने धर्म के आदेश, अपने समाज के नियम और जीवन के सिद्धांत के अनुसार चले। उन्हें चाहिए कि वे सोचे कि यदि उनकी अपनी स्त्रियों पर यह मुसीबत आती जो उनकी करने से इन निर्दोष स्त्रियों को झेलनी पड़ रही है, तो वे खुद क्या करते। मुझे विश्वास है कि अगर ये लोग शांति से इन बातों पर सोच विचार करेंगे तो अवश्य ही उन्हें अपनी भूल का अनुभव होगा और वे इन लोगों का पूरा साथ देंगे जो इन स्त्रियों की रक्षा और सहायता का प्रबंध कर रहे हैं। मैं उन अभागे और शोक ग्रसित परिवार वालों से भी दो चार शब्द कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी माँ बहनों या बेटियों को खोया है। मैं उनकी पीड़ा और घोर यातना को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे अपने प्रियजनों को फिर से पाने के लिए कैसे खतरों का सामना कर रहे हैं और करने को तैयार हैं। मुझे अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो उन दुखित व पीड़ित स्त्रियों का फिर से अपने घर में स्वागत करने के लिए राजी या उत्सुक न हो।
मैं उनसे यही कहूंगा कि आप हिम्मत न हारे, बराबर कोशिश जारी रखें। जहां सैकड़ों और हजारों व्यक्तियों का प्रश्न हो, वहां यह संभव नहीं है कि सब काम केवल सरकारी साधनों से ही हो जाए। व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक गैर सरकारी कोशिश निरी सरकारी कार्यवाही के अपेक्षा अधिक सफल होती है। मैं आशा करता हूं कि कार्यकर्ता लोग निराशाओं और विघ्न बाधाओं से हिम्मत न हारेंगे और उत्साह और तत्परता और दृढ़ निश्चय से साथ इस सत्कार्य में लगे रहेंगे। अपनी इन शोकग्रस्त बहनों को मैं सहानुभूति और संवेदना का संदेश भेजता हूं। उनकी दुर्दशा और उनकी यातनाओं ने हमारे हृदय पर गहरी चोट पहुंचाई है। हमें उनका बराबर ध्यान रहता है। उन्हें इस बात में तनिक भी संदेह न होना चाहिए कि उनके परिवार उन्हें शहर वापस लेने के लिए हृदय से तैयार है और हम उनकी रक्षा के कार्य में किसी प्रकार कमी न आने देंगे। मैं जानता हूं कि उन्हें अपने वर्तमान जीवन का एक एक पल विष का घूंट होगा, किंतु धीरज और विश्वास से बड़ी कठिनाइयां हल हो जाती है और कड़ा से कड़ा दिल पिघल जा सकता है। आप इन दोनों को न छोड़े और परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो लोग आपकी रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे अपने शुभ कार्य में सफल हो और बुरा करने वाले को भी सो ही आत्मा में फिर से जागे और वे अपने कर्तव्य को समझें। Want me that I should talk to you in English, I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language. If you don't do that, then you will drag the country behind, and we have to march forward. Therefore, you must all make up your mind that we have to put our maximum effort to go forward. भारत निवासी प्यारे भाइयों और बहनें, आज भारत की स्वतंत्रता का 1 साल परिपूर्ण होता है। उस समय पर हमें जो खुशहाली होनी चाहिए इतनी तो नहीं होती है, फिर भी 1 साल हमें कितनी कठिनाइयों में काटी और क्या क्या मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ा, उसके पर ख्याल करें तो हमें काफी खुशी मनानी चाहिए। बहुत काम करने का बाकी तो है ही, लेकिन इस मौके पर जो काम हमने किया वो बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी क्या हालत है और भविष्य में, नजदीक के भविष्य में हमें क्या करना है, उसके पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। पिछले साल में जो हमारे मुल्क में भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारे तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली,
उस हालत में एक तो हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती वो कहना मुश्किल है। उसी समय पर पंजाब का टुकड़ा होने के बाद या तो भारत का टुकड़ा होने के बाद जो मुसीबत हमारे सामने आई उसमें क्या क्या कठिनाइयों में पसार होना पड़ा आप सब जानते हैं। लेकिन अब आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। अब हमारा प्रथम कर्तव्य जो हिंदुस्तान में शांति रखने का या शांति स्थापित करने का था वो ठीक तरह से हुआ है तो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की हौजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अवसर पड़ा है और वहां से कौमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। उन दोनों चीज का फैसला करने की हमारी पूरी कोशिश है और हम उम्मीद रखते हैं और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना हम करेंगे। लेकिन ये तो मुल्क के भीतर की बात है। हमारे मुल्क के आसपास जो हालत है उसके पर हमें ख्याल रखना है। चाइना में एक समय पर ऐसी हम उम्मीद रखते थे कि चाइना सारा एशिया की आगेवानी लेगा, लेकिन वहाँ की जो भीतर की हालत है उससे मालूम पड़ता है कि वहाँ से हमको कोई उम्मीद नहीं है और वहाँ बड़ा दुख है। और चाइना में जो आज हालत हो रही है ऐसी हालत दुनिया में कोई मुल्क की नहीं है। अब उसके पास आप देखें मलाया, वहां भी फिसाद हो रही है, इंडो चाइना वहां भी फिसाद हो रही है
और देखे ब्रह्मदेश हमारे पास, हमारे साथ साथ उनको आजादी मिल गई, उसकी क्या हालत है, बड़ी चिंताजनक हालत है। और हमारे पास लगोलग पड़ा है और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में उसका चेप फैलने में देर न लगे, ऐसी हालत है। इसलिए हमें बड़ी सावधानता की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान जितनी स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए इतनी देने में झिझकते हैं और कुछ ऐसे कड़े कानून बनाते हैं जिसके वजह से आजादी पर तराप होती है। हमें कबूल करना पड़ता है कि ये बात कई दर्जे तक सही है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आजादी जिसने दिलवाई, इनका खून करने में भी हमारे मुल्क में ऐसे आदमी पड़े हैं कि जिसको संकोच नहीं हुआ, शर्म नहीं हुई। वैसे लोगों के लिए या तो परदेशी संस्कृति इधर लाने के लिए, आर्थिक परदेशी संस्कृति लाने के लिए, राजकीय संस्कृति लाने के लिए, या वहां का प्रदेश का सोशल स्ट्रक्चर इधर जबरदस्ती ठोकने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, उसको हम ठीक न रखे और उसकी संभाल न रखे तो जो चाइना की हालत हुई, जो बर्मा की हालत हो रही है, जो और आसपास ईस्ट एशिया में हालत हो रही है, वो हमारे मुल्क की हो, वो न होना चाहिए। उससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए पहला हमारा कर्तव्य हिंदुस्तान की स्थिरता संभालना, और उसमें हम गलती करें तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए एक तो हमारा मजबूत एक मध्यस्थ सरकार और दूसरा हमारा मजबूत फौजी इंतजाम, वो दो चीज न हो तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए यदि मजबूत फौज रखनी हो तो उसके लिए जितना आर्थिक बंदोबस्त करना चाहिए, जितनी इंडस्ट्री चाहिए, जितना उद्योग चाहिए, ये सब चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तो हमें मुल्क में हर आदमी का साथ चाहिए। तो मैं इस मौके पर हिंदुस्तान की जनता को हृदय से अपील करता हूं कि आपको भारत की सरकार को जितना साथ देने की ताकत हो वो सब दिल से देना। के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब और पुलिस सारे प्रांत के सिपाहियों, इस मौके पर आप लोगों ने जो अपने मुल्क का सबसे बड़ा नेता था और जिनने
हमारे प्रांत की और हमारे मुल्क की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ाई। उनके स्मारक में हर पुलिस सिपाही ने जो अपना कुछ न कुछ चंदा देके अपनी वफादारी का सबूत दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता। एक समय ऐसा था कि जब पुलिस के नाम से जनता के दिल में जो भावना छूटती थी वो प्रेम की नहीं थी। वो जो भावना थी उसका जो कारण था वो नाबूद हुआ है, नष्ट हुआ है। अब आपके पास वो समय आया है कि जब जनता का प्रेम आप संपादन कर सकते हैं और लोग हिंदुस्तान के भोले भाले हैं और यदि आप मीठी जबान से उसके साथ बात करें और कुछ न करें तो अभी उनका प्रेम आप संपादन कर सकते हैं। जो पिछली हमारी सल्तनत थी जिसमें हम और आप सब गुलामी में पड़े थे, उस समय आपका जो काम कर्तव्य था वो दूसरी प्रकार का था। उस समय पर परदेसी सल्तनत की वफादारी बताने की आपको जरूरत थी, वो भी जहां तक हो सके आपने बताई। लेकिन स्वतंत्र भारत की वफादारी बताने में आपको हर्ष और मगरूबी होनी चाहिए और जिस प्रकार आपने चंदा जमा किया उससे मुझे कहने में खुशी होती है कि आपका दिल का जो परिवर्तन हुआ है वो एक बड़ा विप्लव हुआ है, ऐसा कहिए तो अधिक नहीं माना जाएगा। पिछले चंद महीनों में आपके प्रांत पर बहुत दबाव पड़ा। ये संजोगों का दबाव था, लेकिन इन सब कठिनाइयों में आप लोगों ने जिस प्रकार काम किया, जो वफादारी से आपके प्रांत की सेवा की, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप लोगों से आपकी मध्य प्रांत की सरकार मगरूब हो सकती है, लेकिन हर सूबे की वफादार पुलिस से मध्यस्थ सरकार मगरूब हो सकती है। स्वतंत्र भारत में हमें हमारे प्रांतों में शांति रखने में फौज की मदद लेनी न चाहिए, न जरूरत पड़नी चाहिए। लेकिन पुलिस का काम भी शांति में मदद करने का वहां तक होना चाहिए कि चोर डाकू को पकड़ना और गुनाह करने वाले को पकड़ना और उससे रैयत की रक्षा करना। लेकिन ऐसा समय हमारे लिए नहीं आना चाहिए कि गुनहगार लोग को छोड़ के और को दबाने की जरूरत पड़े, क्योंकि पुलिस का कर्तव्य ये नहीं है
कि जिसमें लोगों को दबाने के लिए आपका उपयोग करना पड़े। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता और हमारी आजादी 1 साल का बच्चा है, और आज तक जिस तरह से हमारा पुलिस का उपयोग किया गया था, उसमें से, उस ग्रेड में से आगे निकलने में कुछ समय लगेगा। तो ये जो बीच का समय है, उस समय में आपकी अवस्था, आपकी स्थिति बड़ी कठिन और नाजुक है, और इस मध्यकाल में आप लोगों को रैयत के साथ बड़ी धीरज से और बड़ी खामोशी से और बड़ी सभ्यता से काम लेना पड़ेगा। 1 साल का अनुभव जो हुआ, उससे मालूम पड़ता है कि आप लोगों ने अपना काम ठीक तरह से सीख लिया है, और खास करके आपके सूबे में जिस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, इससे हम लोग मगरूब हो सकते हैं, और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने जो ये थैली आज अर्पण की, आपके लिए एक तरह से ये काम आसान नहीं है, क्योंकि आज जीवन की जरूरियात का दाम जिस तरह से बढ़ गया है, उसमें इतना पैसा आप लोगों को जमा करना वो कठिन है, मैं समझता हूं। लेकिन इंसान की वफादारी की परीक्षा कठिनाइयों में होती है। आसान काम हर इंसान कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई उठा के हमारे ऐसे समय पर वफादारी का सबूत देना, वो एक बड़ी बात है। तो ये काम जो आपने किया, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो ये स्मारक का काम जिन लोगों ने उठाया है, इन लोगों की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना ही कह के एक बार आप लोगों ने जिस तरह से पिछले 1 साल में काम किया है, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं।